regarding attendance policy. So the next question comes about internship. Regarding cutoff, interview tips, total expense कितना होगा? भैया I am from non-coding background. Since I started making videos on SST, you have been asking a lot of questions either on Insta DMs or in comments. Although I tried answering as much as I can, but let's compile all of them together. So questions are divided chapter wise based on fees, NCET, etc. Also there are some very important information at the end, so don't miss it. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले questions from my experience. So question number 1 is, how was your first year experience? तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिफरेंस यू फील कंपेयर टू अदर कॉलेजेस? तो मेजर डिफरेंस जो मुझे लगा दैट इज रिगार्डिंग करिकुलम एंड इंस्ट्रक्टर. करिकुलम इज वेरी सिमिलर टू व्हाट दे से इन देयर वीडियोस एंड इंस्ट्रक्टर्स, I think that's the best thing about SST. They are literally very experienced and very good in teaching. Next question is regarding attendance policy. So attendance policy is 85% compulsory. But in case you are in top 10% of the class, then attendance doesn't matter. And it is so because उनको ऐसा लगता है कि if you at least attend the classes and lectures, then you can gain the maximum out of what instructor wants to give. The next question is regarding timings. Yes, सही टाइमिंग है मेरी. अगर 2 क्लासेस होती हैं, then first class is from 9 to 11:30, then we have a break of 2 to 3 hours, and the next class अगर है then it continues from 2:30 to 5:30. So the next question is about, will you get time for side gigs? तो हाँ, if you can manage the class stuff very well, then you can get on an average 1 to 2 hours for your side gigs. बाकी खाना घूमना ये सब टाइम तो मिल ही जाता है, but specifically for learning new skills and all, तो हाँ दिन के 1-2 घंटे आराम से मिल जाएंगे. The next question comes about internship. So yes, there is compulsory 1-year internship, but it depends very much on your skills. मतलब अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी भी internship लगेगी. Although they'll arrange interviews and all, but उनको crack तुम्हें ही करना होगा. So depending on your skills, you can get very high stipend or a general average stipend. Next question comes about mentor sessions. Basically there are 2 types of mentor sessions. One is super mentor session, जो तुम podcast या guest की photos देखते हो, they are our super mentors. And the next type of sessions are your personal mentor sessions. So every student is assigned a mentor to whom you can connect either online or offline depending on their availability, which happens generally twice a month. The next question is about skills to learn before joining college. तो इसका भी वीडियो आ रहा है, तो स्टे ट्यून. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी इन SST पर डे? तो ऑन एन एवरेज इंक्लूडिंग क्लासेस एंड ऑल, वी स्टडी अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स. अगला क्वेश्चन है अबाउट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, हाँ स्केलर का ये फर्स्ट बैच है, तो इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स मत पूछो. एंड जो वेबसाइट पे मेंशन है वो स्केलर एकेडमी के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, और स्केलर एकेडमी वर्किंग प्रोफेशनल्स को पढ़ाती आ रही है पिछले 5-6 सालों से, तो उनका एवरेज इज 21 LPA. अगला क्वेश्चन है, डू यू गाइज इंजॉय और डू अदर थिंग्स देन स्टडी? तो हाँ, वी इंजॉय, वी डू अदर थिंग्स देन स्टडी. हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, खैर वो अगला क्वेश्चन भी है, बट हाँ इंडोर स्पोर्ट्स भी अच्छे ठीक ठाक हैं, आउटडोर भी अभी ठीक ठाक ही हो गया है. हाँ वी इंजॉय, हॉस्टल लाइफ है तो मज़े तो करते ही. अब अगला चैप्टर रहता है क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनसेट. तो सबसे पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग कट ऑफ. जितना अभी स्टूडेंट से बात करके पता चला है, इट इज अराउंड 30 to 40%. अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट एडमिशन मिलता है क्या? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 11th-12th में हूँ, क्या करूँ टू ज्वाइन SST? पढ़ाई. मतलब आई वुड सजेस्ट कि कंटिन्यू विथ योर JEE प्रिपरेशन, क्योंकि SST में सीट्स बहुत लिमिटेड है. तो अगर यहाँ सीट नहीं मिली तो ऐसा केस ना हो कि तुम्हारे पास कोई और कॉलेज नहीं है बैकअप के लिए. अगला क्वेश्चन है कि भैया क्या 1 month प्रेप काफ़ी रहेगी? तो हाँ काफ़ी रहेगी. अगर तुम्हें मैथ्स पहले से भी थोड़ी बहुत आती है तो 1 महीने की प्रैक्टिस से हाँ एनसेट क्लियर हो सकता है. अगली चीज़ रिगार्डिंग सिलेबस. तो सिलेबस और उसके बाद एक और क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिसोर्सेज. तो ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यू कैन गो थ्रू इट. तो अगला क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंटरव्यू टिप्स. तो देखो हमारे टाइम पे 2 इंटरव्यूज हुए थे. फर्स्ट वन वॉज अबाउट योर एकेडमिक्स और एप्टीट्यूड, एंड सेकेंड वन वॉज अबाउट एटीट्यूड, जिसको ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन भी बोलते हैं. तो पहले इंटरव्यू में जो कि मेजर इंटरव्यू था,
वो था अबाउट एटीट्यूड। तो उसमें टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, जो सिलेबस टेस्ट का था वैसे ही क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक पे पूछे गए थे। बट ये जज करने के लिए नहीं कि तुम्हारा आंसर सही आता है कि नहीं, ये जज करने के लिए कि तुम्हारी अप्रोच कैसी है, तुम क्या क्यूरियस हो आंसर लाने के लिए, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है कि नहीं। तो टिप्स यही रहेंगी कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो बढ़िया है, करते जाओ, बट स्टेप्स जरूर बताते जाओ कि अगला स्टेप तुमने क्यों किया, व्हाट वाज योर माइंडसेट व्हाइल टेकिंग दैट नेक्स्ट स्टेप। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कम से कम अपनी अप्रोच जरूर बताओ, क्योंकि वो यही देखना चाहते हैं कि तुम्हारा लर्निंग माइंडसेट है कि नहीं। और रिगार्डिंग तुम्हारा ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन वाला इंटरव्यू, तो उसमें बस ऑनेस्ट रहो और कॉन्फिडेंट रहो और जो पूछे वो बता दो, और पहले से अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन रेडी करके जाओ तो काम हो जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है कि इंटरव्यू के कितने टाइम बाद रिजल्ट आता है। तो अभी तक जितने स्टूडेंट से बात की है तो 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता है। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो वेबसाइट पर भी मेंशन है वो है कि यू शुड हैव एटलीस्ट 60% इन योर 12th ग्रेड और योर एज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। फिर अगला क्वेश्चन है कि इज देयर एनी रेफरल सिस्टम। तो हाँ, देयर एग्जिस्ट अ रेफरल सिस्टम जिससे तुम्हारे एनसेट की रजिस्ट्रेशन पर 50% ऑफ हो सकता है, और उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर आखिरी क्वेश्चन आता है वो है कि इंटरव्यू लैंग्वेज क्या होगी। तो इंटरव्यू लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, पर अगर इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है तो चल जाएगा, बट फिर भी प्रैक्टिस थोड़ी कर लेना। इसी के साथ अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू फीस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टोटल एक्सपेंस कितना होगा, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल, ट्यूशन, बिट्स फीस सब मिला के लगभग 22 लाख के आसपास खर्च आता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 3rd ईयर की हॉस्टल फीस ऑप्शनल क्यों है। तो बेसिकली 3rd ईयर में तुम्हारा कंपलसरी इंटर्नशिप प्रोग्राम है, तो उसमें अगर तुम्हारी इंटर्नशिप हॉस्टल के पास लगती है तो फिर तुम हॉस्टल फीस देके इसी हॉस्टल में रह सकते हो। बट अगर तुम्हारी लोकेशन इस हॉस्टल से दूर है या कंपनी यहाँ से दूर है तो तुम कंपनी के आसपास कोई भी रेसिडेंस लेके वहाँ की फीस दे सकते हो। ऑप्शनल मतलब ये है कि अगर तुम हॉस्टल लेते हो तो तुम्हें फीस देनी है, और अगर तुम हॉस्टल ना लेके कहीं और रहते हो तो तुम्हें फीस नहीं देनी है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इतनी हाई फी वर्थ है क्या। इसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें पूरा फी ब्रेकडाउन दे रखा है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग एजुकेशन लोन। तो हाँ, स्केलर हेल्प्स इन गेटिंग द एजुकेशन लोन, फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट द एडमिशन काउंसलर, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन भरा पड़ा, चेक कर लेना। फिर आखिरी क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स। हाँ, तो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली इकोनॉमिक कंडीशन, योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स, योर टेक अचीवमेंट, और वो सब की डिटेल भी वेबसाइट पर मेंशन है, तो उसकी लिंक भी। हाँ, फिर इसी के साथ हमारा अगला चैप्टर आता है रिगार्डिंग डिग्री, और इसमें सबसे पहले हम तुम्हें क्लैरिफिकेशन दे दें कि नहीं, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी तुम घर बैठे अटेंड नहीं कर सकते, वो कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे कि कौन सी डिग्री ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें बिट्स पिलानी से बीएससी डिग्री और वुल्फ यूनिवर्सिटी से एमएससी डिग्री मिल जाती है कंप्यूटर साइंस में, और बिट्स पिलानी की डिग्री तुम्हें कोर्सेरा के थ्रू करनी होती है। उस सब का अरेंजमेंट स्केलर वाले ही करा देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्या बीएससी की डिग्री करके भी अच्छी जॉब मिल सकती है। तो जितना अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो डिग्री इज वन ऑफ द लास्ट थिंग जो कि रिक्रूटर्स देखते हैं। पहले वो तुम्हारे प्रोजेक्ट देखेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तुम्हारी रैंकिंग देखेंगे, तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे, उसके बाद कहीं जाके शायद ही डिग्री देखेंगे। तो डिग्री से उतना फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं तो हाँ, इस डिग्री के साथ भी तुम्हें अच्छी जॉब मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है क्या स्केलर बीएससी का पढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है, बिट्स की जो बीएससी डिग्री है वो स्केलर के करिकुलम का एक सबसेट है, मतलब स्केलर तुम्हें उससे ज्यादा ही पढ़ाएगा और बिट्स का तुम्हारा अपने आप कवर हो जाएगा, ज्यादातर सिलेबस ओवरलैप्ड है। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर बिट्स एग्जाम। तो जैसा भी बताया कि ज्यादातर तो स्केलर के करिकुलम से ही कवर हो जाता है। हाँ, अगर कुछ टॉपिक्स बचते हैं तो यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं उसके लिए, तो हाँ, उससे प्रिपेयर हो जाता है। और किसी ने पूछा कि भैया आपकी सीजी क्या रही है, तो बिट्स की सीजी अभी तक हमारी 8.7 के आसपास रही है। और फिर पूछा है कि बिट्स के एग्जाम कैसे होते हैं। तो बिट्स के एग्जाम स्केलर में ही होते हैं, बिट्स से इन्विजिलेटर आते हैं और स्केलर के भी इन्विजिलेटर होते हैं, तो एक नॉर्मल एग्जाम की तरह वो एग्जाम भी तुम्हें देने होते हैं। और इसी के साथ अब हम आते हैं आखिरी चैप्टर पर, जो कि है जनरल क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई नो नेगेटिव रिव्यूज अबाउट एसएसटी।
क्या ये कोई स्कैम है? नेगेटिव रिव्यूज इसलिए नहीं है, अब तुम मानो ना मानो, बट इतना कुछ नेगेटिव है नहीं। अब बताने को हम तुम्हें ये बोल दे कि हाँ हॉस्टल फूड उतना अच्छा नहीं है या फिर खेलने की फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट ऑनेस्टली ये सब उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि करिकुलम बहुत अच्छा है। जो पढ़ाया जाता है उसके साथ ही स्टूडेंट्स काफ़ी बिजी रहते हैं, बट हाँ इम्प्रूवमेंट्स का स्कोप तो है ही। स्पोर्ट्स फैसिलिटी और खाना इम्प्रूव हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कैंपस के बारे में कुछ बताइए। तो 2 कैंपस हैं, एक माइक्रो कैंपस जो कि हमारा हॉस्टल है और एक है मैक्रो कैंपस। और मैक्रो कैंपस में भी क्लासरूम है, इनोवेशन लैब है और फुटबॉल क्रिकेट खेलने के लिए एक छोटा सा टर्फ है, बैडमिंटन का भी है और एक कैफेटेरिया भी है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ आके देखें। बाकी इसका वीडियो भी बन रखा है, तो आई विल मेंशन इट इन डिस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है कि भैया आई एम फ्रॉम नॉन कोडिंग बैकग्राउंड। तो देखो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से ही हैं, वही हैं जिन्होंने जेई की प्रिपरेशन में 11-12 लगा दी। तो हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्केलर में तुम्हें ज़्यादातर चीज़ें बेसिक से ही पढ़ाई जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो इज इट बेटर देन SST? तो देखो कॉलेज के ऑप्शंस हमारे पास भी थे, बट SST हमने इसलिए चूज किया मेजरली बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। सबसे पहले यहाँ का करिकुलम, दूसरा यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स और तीसरा बेंगलोर। अब तुम मानो ना मानो, बट बेंगलोर में नेटवर्क्स बनाना बहुत आसान है और बहुत अच्छे नेटवर्क्स बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स। तो यार उसके लिए खैर ये बहुत मुश्किल होता है, हम अभी तक कन्विंस कर रहे हैं। तो उनको तुम बता सकते हो कि तुम्हारे गोल क्या है, या फिर कंप्यूटर साइंस जैसी फील्ड में स्किल कितनी ज़्यादा मैटर करती है ओवर डिग्री। तो इस सब के थ्रू हमने अपने पेरेंट्स को समझाया था, तुम भी कोशिश कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन इज भैया कैन आई कॉल यू। यार देखो सबसे पहले इस वीडियो में जितने आंसर मिल रहे हैं उनसे अपना काम चलाओ। बाकी तुम हमें हाँ कमेंट्स में या इंस्टा DM पर पूछ सकते हो, और अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो फिर देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बेस्ट लैपटॉप। तो उसके लिए भी वीडियो आ रहा है, तो स्टे ट्यून। ठीक है, अब लास्ट में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तो फटाफट वो कर देते हैं। सबसे पहले एनसेट के लिए अगर रजिस्टर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर एक और चीज़, एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसमें हम एक स्टूडेंट कम्युनिटी बना रहे हैं, और आगे चल के आई एम प्लानिंग टू टेक सम सेशंस ऑन हाउ टू बिगिन विद कोडिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन या फिर AI, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। और वैसे ही सिमिलर वीडियोस यूट्यूब पर भी आने वाले हैं। तो हाँ मैं बोल तो नहीं रहा, पर सब्सक्राइब कर लेना।